co-founder of Conquering My Own Everest. Okay, so some people will please switch on your video so that we can start. I can I can see you, and so that I can deliver it much better according to your needs. Thank you so much. Thank you. And my last announcement: if you are a child from DAV school, you may please leave. This is for children. This is not for children. This is for parents and teachers. This is adult conversation. Thank you so much. Okay. And welcome everyone who have joined from DAV or from other circles, from NSID. So thank you so much for joining, for taking out time. Your presence tells me, आपके यहाँ होने से मुझे ऐसे पता चलता है कि आप अपनी वेलबींग का, हेल्थ के लिए कुछ करना चाहते हैं और किसी लाइफस्टाइल डिजीज से डील कर रहे हैं जिसकी वजह से आप यहाँ हैं। तो मैं कुछ डिजीजेस के नाम लेना चाहती हूँ। अगर आप में से कोई भी लाइफस्टाइल डिजीजेस से डील कर रहे हैं तो चैट बॉक्स में 5 लिखिएगा। तो आई एम जस्ट सेइंग नेम ऑफ द डिजीजेस और आप देखिए कि आप कोई लाइफस्टाइल डिजीज है क्या आपको। ओके, डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, cardiovascular diseases, anything related to heart, okay, migraine, any kind of pains in the body or bone pains, sciatica, cervical, any kind of, if I'm saying name of all these diseases, अगर आप में से कोई किसी भी disease से deal कर रहे हैं तो आप अपने chat box में 5 लिख सकते हैं, so that I know that you are here because you are dealing with some of the diseases. Any kind of immunity issue that you are dealing with, thyroid issue you are dealing with, regular headaches, low energy, any of these things that you are dealing with, sleep apnea, difficulty in sleeping, low energy throughout the day, any kind of a gas, bloating, acid reflux kind of a problem, IBS kind of a problem that you are dealing with, any kind of kidney related diseases that you are dealing with, any kind of pancreatic diseases that you are dealing with, any kind of metabolic diseases that you are dealing with, any kind of digestive issues that you are dealing with. Okay, any kind of anxiety, mood swings, depression, low feeling that you are dealing with. Okay, any kind of cancer or post cancer recovery that you are dealing with. Okay, all right, thank you so much. Okay, so I do relate to all these diseases. मतलब मेरे को इन सारी diseases से तो मैंने deal नहीं किया, लेकिन अब बहुत सारी lifestyle diseases हैं जिन्होंने मैं हमेशा अपने short introduction में हमेशा ऐसे बोलती हूँ कि मैं मुझे ऐसा लगता था कि मुझसे ज़्यादा सुधरा हुआ कौन हो सकता है। घर का खाना खाती हूँ और हरी सब्जियां खाती हूँ, नॉन अल्कोहलिक हूँ, नॉन स्मोकर हूँ, तो मुझे लाइफस्टाइल डिजीजेस कैसे हो सकती हैं, ऐसा मैं हमेशा अपने बारे में सोचती थी। लेकिन रियलिटी ये थी कि जब मैं सिर्फ 35 इयर्स की थी तो मुझे इतना सिवियर एसिड रिफ्लक्स था, मुझको नहीं मालूम होता था किस दिन मैं सुबह सो के उठूंगी और सिवियर एसिड रिफ्लक्स से डील कर रही होंगी। मुझे घुटनों में इतना दर्द रहता था कि मुझे पता नहीं था नीचे कैसे बैठा जा सकता है, बहुत ही सिवियर पेन होता था। आई हैड सिवियर who has shared this screen, and I had severe problem and I was pre-diabetic, I was getting to be I was obese, I was 80 kgs, so I was dealing with lots of lifestyle diseases और regularly medicines लेती थी, पर किसी भी मेडिसिन से जो मेरा डायरेक्शन था वो उस तरफ नहीं था कि आज से 10 साल बाद में जो अभी हूं उससे बेटर होंगी। मुझे हमेशा सोच के ऐसे लगता था कि आज से 10 साल बाद की कंडीशन और आज से 20 साल बाद की कंडीशन, जो आज की कंडीशन है, इससे खराब होने वाली है। तो मुझको इस बात को सोच के बहुत घबराहट होती थी, इतना बहुत अनईजी महसूस होता था कि कैसे मैं अपनी जो ओल्डर एज है या जो मेरे जितनी मैं अभी हूं उससे जो नेक्स्ट एज है उसको कैसे सुधार सकती हूँ। आप में से किसी को ये फियर होता है क्या कि आपको ऐसी अंदर से फीलिंग आती है कि जिस जगह पर भी आप खड़े हो आज से 5 या 10 साल बाद आपकी हेल्थ इससे खराब होगी, ऐसा आपको अंदर से फीलिंग आती है और आपको थोड़ा जेन्युइन होना पड़ेगा इसके लिए। कैसे आपको कभी डर लगता है, अकेले में बैठे होते हैं, अपनी हालतें देखते हैं अपने, तो ऐसा क्या लगता है कि आज से 10 साल या 20 साल बाद आप जहां हो वहां से थोड़ी कम अच्छी स्थिति में होगे। अगर आपको ऐसा लगता है तो अपने चैट बॉक्स में आप 3 लिख सकते हो, जस्ट राइट 3 इन द चैट बॉक्स। आई नो दैट यू आर लिसनिंग टू मी एंड यू आर रिस्पॉन्डिंग टू दिस कॉन्वर्सेशन।
कि आपको मन ही मन में अंदर से ऐसे डर लगता है कि ये ठीक नहीं जा रहा है जैसे भी ये सब। और आप में से कितने लोगों को ये डर भी लगता है कि हम जैसी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, हमने फिर भी बेटर लाइफस्टाइल जी है, लेकिन अगर हमारे बच्चे जिस तरफ जा रहे हैं उनकी हेल्थ को लेकर भी आपको कंसर्न आता है, कि आपको लगता है कि वो हमसे पहले भी, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है वो हमसे पहले बीमार होगी और हमसे ज्यादा डिजीजेस से डील कर रही होगी। कहीं आपको जब आप अकेले बैठे, नो मैटर यू आर डूइंग बेस्ट फॉर योर चिल्ड्रन, आप उनको जो सबसे अच्छी चीजें बाजार में मिलती हैं वो सब देने की कोशिश करते हो, पर उसके बावजूद भी आपको ऐसा लगता है कि ये जो पूरी जनरेशन में, मतलब जिसमें हम भी इंक्लूडेड हैं, हम लोग का डायरेक्शन थोड़ा गलत है, हम डिटोरिएशन की तरफ हैं। आप में से कितने लोगों को ऐसी फीलिंग आती है? तो अगर ऐसी फीलिंग आती है तो आप या 3 लिख सकते हैं या 5 लिख सकते हैं, अगर आपको बच्चों को लेकर ऐसी फीलिंग आती है कि सब बेस्ट करने के बावजूद भी आपको पता है कि कुछ तो मिस है, जो कि ठीक नहीं जा रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है जिसको ठीक करने की जरूरत है, पर समझ नहीं आता सिवाय इसके कि थोड़ा और अच्छा खा लो या थोड़ी चीजें और ठीक कर लो। ओके ग्रेट, सो थैंक्स। हम लोग इसी चीज के बारे में, ये जो फंडामेंटल इशू जो मेरे को एक इंसाइट बोल सकते हैं मुझको मिला, मुझे ऐसे दिखाई दिया कि अगर मैंने अपनी लाइफस्टाइल में ना कुछ फंडामेंटल चेंजेस नहीं किए तो जिस डायरेक्शन में मैं जा रही हूँ वो बहुत खराब है, और आज से 10 साल और 20 साल बाद ये और भी खराब होगा अगर मैंने अभी कुछ करेक्ट नहीं किया। और इसी थॉट से मैंने अपनी हेल्थ एंड वेलबींग पे काम करना शुरू किया, ये डिस्कवर करना शुरू किया कि कैसे जो लाइफस्टाइल डिजीजेस होती हैं उसके पीछे कॉज हम खुद हैं, कि हमने कुछ लाइफस्टाइल में कुछ गलत किया। एटलीस्ट मैंने अपने बारे में डिस्कवर किया कि मैंने लाइफस्टाइल में कुछ गलत किया है और मुझे उसे ठीक करने की जरूरत है, और अनलेस मैं अपनी लाइफस्टाइल ठीक करूंगी तब तक ये लाइफस्टाइल डिजीजेस मुझे छोड़ के जाने वाली नहीं है। ये मेरा इंसाइट था, जिसके बाद से मैंने ये पूरा पढ़ाई करना शुरू किया। और मुझे एक बात ये भी समझ में आई कि लाइफस्टाइल ड्रग्स जो हम लेते हैं, जो भी ये मेडिसिन लेते हैं, ये मेडिसिन मेरी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करने वाले हैं। ये प्रॉब्लम्स मेरी डिजीजेस का मैनेजमेंट कर सकती हैं, जो प्रॉब्लम आज है उसको शिफ्ट करके 10 साल बाद तक शिफ्ट कर सकती है, लेकिन ये सोल्यूशन नहीं हो सकती। सोल्यूशन आएगा जब अपनी लाइफस्टाइल में मैं परिवर्तन लाऊंगी। तो जब हम लाइफस्टाइल में परिवर्तन लाने की बात करते हैं तो भी सिर्फ हम 2 चीजों के बारे में फोकस करते हैं। अधिकतर लोग थोड़ा कम खाना शुरू कर देते हैं, दे रिड्यूस व्हाट दे ईट, ओके। और दूसरा परिवर्तन सब लोग करते हैं कि वो थोड़ी एक्सरसाइजेस करने की कोशिश करते हैं, या तो जिम ज्वाइन कर लेते हैं कि चलो जिम के पैसे दे देते हैं, एटलीस्ट हम जिम जाने लगेंगे, या फिर रनिंग स्टार्ट कर देते हैं, या कुछ तो भी कोई फिजिकल वर्क शुरू करने की कोशिश करते हैं। कम खाना थोड़े दिनों बाद फिजिल आउट हो जाता है, और रैंडमली कोई भी एक्सरसाइजेस करना भी थोड़े दिनों में फिजिल आउट हो जाता है, या तो कोई इंजरी हो जाती है और या तो कोई लाइफ में बहुत बिजी टाइम आ जाता है कि जो भी आपने सोचा था वो नहीं हो पाता। तो आइदर ऑफ द 2 थिंग्स वर्क नहीं कर पाती, और हम फिर या तो बैक टू स्क्वायर वन होते हैं या तो फिर वापस डिटोरिएशन की तरफ होते हैं। और इस सब के बीच में कैसे क्या लाइफस्टाइल चेंजेस लाए जाएं, एक थ्योरी कहलाती है थ्योरी ऑफ मार्जिनल गेन, कि हमें कोई छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हैं जिनको करेक्ट करने की जरूरत है, और वो इतनी बारीक बारीक छोटी छोटी चीजें हैं कि अगर हम उनको हर ऐसी 15-16 चीजों को ठीक कर लेंगे ना, और वो रोज की लाइफस्टाइल में इंक्लूड करनी होती है। जैसे कि मैं बहुत नॉर्मल एग्जांपल देती हूँ, नॉर्मल लाइफस्टाइल, मेरी नॉर्मल लाइफस्टाइल से बहुत छोटी सी चीज, मतलब प्रोटीन बिल्कुल मिसिंग था मेरी लाइफस्टाइल से, ये अवेयरनेस ही मिसिंग थी कि मैं डीप ब्रेथ ले रही हूँ कि नहीं ले रही हूँ। लाइफस्टाइल से बिल्कुल ही मिसिंग था कि मेरा सन को एक्सपोजर कितना है। एकदम छोटी सी बात ये मिसिंग थी कि मेरी जो वर्टिब्रा है, जो बैकबोन है, वो सीधी है कि नहीं, मैं कैसे भी झुक के, कैसे भी गलत पोस्चर में सारा दिन बैठकर काम करती रहती थी। तो ये इतनी छोटी चीजें, जैसे मेरी लाइफस्टाइल में क्या विटामिन सी, मतलब लेमन इंक्लूडेड है कि नहीं है, क्या मेरे को राइट काइंड के सॉल्ट्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, जो मिनरल्स एंड सॉल्ट्स होते हैं। तो ये कितनी छोटी छोटी चीजें, ये बड़ी बड़ी चीजें नहीं है। यूजुअली हमारा दिमाग कई बार इतनी बड़ी बड़ी चीजों पे फोकस रहता है कि हमारे लाइफ से ये बहुत छोटे छोटे, जिनको मार्जिनल गेन्स या बहुत छोटे छोटे चेंजेस बोलते हैं, नहीं हो पाते। पर क्या ये छोटे छोटे चेंजेस लाना इतना आसान काम है? क्या हम अकेले ला सकते हैं? क्या हमको कोई सपोर्ट चाहिए होता है? तो मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया कि अकेले करना बहुत मुश्किल काम है। कोई भी चीज जो 5 लोग करते हैं या आप किसी सपोर्ट से करते हैं, तो वो करना और उसका होना ज्यादा आसान होता है। तो ये भी मेरी एक लर्निंग थी। तो मैंने जब अपनी हेल्थ पे काम करना शुरू किया था, तो मैंने अपने 5 फ्रेंड्स का ग्रुप बनाया था। हम साथ में पढ़ाई करते थे,
साथ में समझते थे और साथ में इम्प्लीमेंट करते थे। इस पूरे प्रोसेस में कब हमारी लाइफस्टाइल शिफ्ट हुई हमको पता नहीं चला। मतलब मैं 80 केजीज की हेफ्टी वुमेन थी और आराम से 100-200 ग्राम वेट गेन कर रही थी और मुझे बिल्कुल नॉर्मल लगता था। अगर आप मुझसे उस टाइम पे मिलते और मुझे पूछते तो मैं ये जवाब नहीं देती कि मुझे कोई डिजीज है, क्योंकि मुझे लगता था डिजीज तो उसे कहते हैं ना जब कुछ वाकई में हो जाए, जब कैंसर आई जाए, जब डॉक्टर ऐसे कह दे कि तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल लिमिट के पार जा चुका है, जब बहुत ही कोई जब तक सीवियर चीज नहीं जाए तब तक मैं ये मानने को तैयार नहीं थी कि मुझे कोई लाइफस्टाइल डिजीजेस है। इसलिए मैं ये भी मानने को तैयार नहीं थी कि मुझे कोई परिवर्तन लाने की जरूरत है। मतलब मैं किसी बड़े डिजास्टर का वेट कर रही थी कि जब तक बड़ा डिजास्टर नहीं आएगा तब तक मैं नहीं सुधरूंगी। आप में से कितने लोग इस जगह पर हो? आपको कैसे ऐसे लगता है कि आपको जब तक कोई बड़ी चीज नहीं होगी तब तक आपको लगता है कि आप ठीक ही जा रहे हो? थोड़े मोड़े डिस्कम्फर्ट को, थोड़ा सर में दर्द, थोड़ा पेट में दर्द, ये सब आप मानते नहीं हो कि ये कोई रियल प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप इन कैटेगरी में हो तो अपने चैट बॉक्स में 7 लिख सकते हो, सो दैट आई नो दैट आपको भी नहीं लगता कि छोटी मोटी प्रॉब्लम से क्या डील करना है। अरे अभी तो फैमिली का ध्यान रखो, अभी जॉब का ध्यान रखो, अभी बाकी दुनिया का ध्यान रखो, अभी अभी कुछ बड़ा नहीं हुआ है। जब कुछ बड़ा होगा तब प्रॉब्लम देखेंगे, अभी हमें मार्जिनली कुछ इंप्रूव करने का समय नहीं है। ओके, हैप्पी टू नो कि कुछ लोग हैं मेरे जैसे। ओके ओके गुड, थैंक यू। और तो मैंने एक्चुअली अपनी प्रॉब्लम्स को जो मुझे एज 23-24 में संभाल लेनी चाहिए थी उसको मैंने पुश करते करते 35-36 तक पहुंचाया। और उसके बाद मैंने धीरे धीरे करके 35-36 पे जब स्थिति काफी बिगड़ गई तब मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू किया। आई होप इस स्टोरी से आप में से कोई लोग थोड़ी जल्दी समय पे जाग जाएंगे और ये सोचेंगे कि अभी सही समय है काम करने का, अभी से काम करना शुरू करेंगे तो तब तक आप 37 या 40 या 44 या 45 तक पहुंचेंगे, मच बेटर स्थिति में हो सकते हैं। और जो जितने भी मैं अपने से सीनियर लोगों से बात करती हूँ वो सब मुझे अगर एक एडवाइस देना चाहते हैं कि क्या डिफरेंटली किया होता है तो वो डिफरेंटली ये है कि हर एक दिन थोड़े समय के लिए जब हम परिवार का, ऑफिस का, आसपास के लोगों का ध्यान रख रहे थे तो काश अपना भी ध्यान रख लिया होता, अपने ये भी सोच लिया होता कि हमें क्या जरूरत है। सो विद दिस थॉट आई वांट टू टेल यू दैट मार्जिनल गेन्स में 4 हॉर्मोन्स हैं जो बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। इनको हम हैप्पी हॉर्मोन्स कहते हैं। और ये अगर आप हैप्पी हॉर्मोन्स को लुक आफ्टर कर सको तो आप अपनी पूरी हेल्थ को लुक आफ्टर कर सकते हो। तो हम अपनी हेल्थ को किसी भी एंगल से अप्रोच कर सकते हैं। तो आज का जो अगले हाफ एन आवर के लिए अप्रोच मैं लेने वाली हूँ वो हैप्पी हॉर्मोन्स का अप्रोच है, कैसे हम हैप्पी हॉर्मोन्स के थ्रू अपनी पूरी हेल्थ को लुक आफ्टर कर सकते हैं। ओके, सो क्विकली से 4 हैप्पी हॉर्मोन्स के नाम बोल देती हूँ। डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन एंड एंडोर्फिन, ये 4 हैप्पी हॉर्मोन्स हैं। तो सबसे पहले डोपामिन के बारे में बात कर लेते हैं। तो डोपामिन हार्मोन ऑफ स्मॉल गेन्स है, मतलब छोटी छोटी चीजें अगर अच्छे से होती रहे लाइफ में तो हमारा डोपामिन हार्मोन कॉन्स्टेंटली अप जाता है। एक हैप्पी, इट सेज हैप्पी हार्मोन है, हमको हैप्पी रखता है, हमको हैप्पी रहने में मदद करता है। तो अगर दिन भर हम कुछ ऐसी चीजें करें कि डोपामिन हार्मोन ऊपर जाए तो हम ऐसे कह सकते हैं कि हम अपनी हेल्थ में सही डायरेक्शन में हैं। तो वो क्या छोटी छोटी चीजें हो सकती हैं जो हम सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हैं? लेट्स मेक अ लिस्ट ऑफ सम थिंग्स दैट वी कैन डू टू कीप आवर हैप्पी हार्मोन्स अप। ओके, तो फर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू इज, जो कि शायद रात से शुरू होगा, स्लीप वेल। सो स्लीप वेल, जब आप सुबह सो के उठते हो जो खुशी की फीलिंग होती है ना, और आप कहीं पर अगर आप ट्रैक करते हो, अगर आप किसी कैलेंडर पे, किसी कॉपी पे या किसी जर्नल में ट्रैक करते हो, अगर आप सुबह उठ के ये लिखो कि आप कितने घंटे शांति से सोए हो, अगर आप वो नंबर लिखो कहीं पर, तो आपका डोपामिन हार्मोन अप जाता है। सो दैट्स डोपामिन हार्मोन अप जाता है कोई छोटी छोटी चीजें अकम्प्लिश करने से। तो सोने से हार्मोन अप नहीं हुआ, पर कहीं लिखने से कि हाँ हमने आज इतनी नींद ली, अपनी बॉडी को रेस्ट दिया, डोपामिन हार्मोन अप जाता है। सुबह उठ के ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने से, किसी को ग्रैटिट्यूड देने से, किसी भी चीज को हो सकता है। तो हमारे प्रोग्राम में हम लोग ये यूज करते हैं कि जब आप सुबह उठते हैं तो अपने बॉडी पार्ट्स का नाम लें। सुबह उठ के बोले फीट, काफ मसल, नीज, थाइस, हिप्स, स्टमक, चेस्ट, फिंगर्स, आर्म, शोल्डर, नेक, चिन, लिप्स, नोज, चीक्स, आईज, ईयर्स, फोरहेड, टॉप ऑफ द हेड एंड पुल अप। और ये करते हुए आप अपने ऑर्गन्स को, अपने बॉडी पार्ट्स को ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करें, उससे आपका डोपामिन ऊपर जाता है। फिर जब आप नीचे पैर रखते हैं जमीन पे तो आप एक्चुअली थैंक गॉड कर सकते हैं कि यू गॉट अनदर अपॉर्चुनिटी टू लिव योर डे।
ये एक बहुत छोटा सा एक्ट है, इसको करने से आपका डोपामिन हार्मोन अप जाता है। जब आप पहली बार पानी लेते हैं या कुछ भी लेते हैं, कोई छोटी सी चीज अपनी बॉडी को देते हैं, आप वो करते हुए अगर आप ये एक्सपीरियंस, ग्रेटिट्यूड एक्सपीरियंस करें, तो भी आपका डोपामिन हार्मोन अप जाएगा। आप सुबह उठ के ऐसे भी सोच सकते हैं वो अनदर दिन है, आज तो बहुत सारा काम है, मुझे तो बहुत परेशान रहना है अभी तो पूरी, तो आप ऐसे भी सुबह उठ सकते हैं, या आप किसी ग्रेटिट्यूड के साथ भी उठ सकते हैं कि हाँ मुझे अपॉर्चुनिटी है अनदर डे जीने की। तो ये आपके डोपामिन हार्मोन को अप कर सकता है। जो लोग सुबह वॉक पे जाते हैं या कुछ भी करते हैं और रोज वॉक पे नहीं भी जा पाते, अगर वो एक छोटी सी प्रैक्टिस अपनाए, विच इज वॉक पे नहीं जा पा रहे पर कोई बात नहीं, पर शूज जरूर पहनेंगे, तो ये एक और छोटी सी चीज है जो हम अपने प्रोग्राम पे प्रैक्टिस करते हैं कि आप बड़ी बड़ी हैबिट मत डेवलप करो, पहले शुरू में छोटी छोटी हैबिट डेवलप करो। कोई एक सर्टेन टाइम का अलार्म लगाओ जिसमें आप अपने शूज पहनो, और वो शूज पर पहनने से सोचो कि अच्छा शूज पहने मैंने, आपका डोपामिन हार्मोन थोड़ा अप की तरफ जाएगा कि एटलीस्ट अपने लिए इतना तो किया। सो इससे पहले आप बाहर की दुनिया के लोगों के लिए कुछ करना शुरू करो, अगर अपने लिए कुछ थोड़ा एक कोई छोटी सी चीज करते हो तो उससे आपका डोपामिन हार्मोन अप जाता है। What else you can do? You can put some things back at place, जो I'm sure आप में से बहुत सारे लोग करते होंगे, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज जो आपकी अपनी पर्सनल है जिसको आप कभी लुक आफ्टर नहीं करते, आप उस चीज को सही जगह पे रखो। ये छोटी छोटी चीजें करने से डोपामिन हार्मोन अप जाता है। The question that must be coming in your mind is डोपामिन हार्मोन को अप करना क्यों है? डोपामिन हार्मोन को अप इसलिए करना है क्योंकि एक हार्मोन है हमारी बॉडी में जिसको कॉर्टिसोल बोलते हैं। जो कॉर्टिसोल हार्मोन है वो स्ट्रेस हार्मोन है। जैसे ही आपको स्ट्रेस आता है हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन आता है। अब कॉर्टिसोल हार्मोन का ऑपोजिंग हार्मोन से हैप्पी हार्मोन्स, जैसे ही हैप्पी हार्मोन्स आते हैं हमारे ब्रेन को, हमारे हाइपोथैलेमस को, हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सिग्नल पहुंचता है कि कॉर्टिसोल की जरूरत नहीं है, इतनी सारी परेशानियां होने के बावजूद भी लाइफ अच्छी है और अभी भी शाहरुख ही कंट्रोल में है लाइफ का। ऐसा सिग्नल देने के लिए अपने ब्रेन को हमें अपने हैप्पी हार्मोन्स पे काम करना इंपॉर्टेंट होता है। डज इट मेक सेंस? अगर आप में से ये कॉन्वर्सेशन किसी को समझ में आ रही है, I have no idea, Abhishek, why are you doing what you are doing here? You can be out of this webinar if you do want to promote things that doesn't belong to this place. You know what? Right now my cortisol hormone is up. So what can I do to make my dopamine hormone up? Is I can smile and let go that person. Okay. So somebody can manage these people from the chat box, and thanks, Petal. I will definitely smile, and I'll pick up my, I will also deep breath. I will also do a pull out to get my dopamine up, क्योंकि जैसे dopamine up होता है, cortisol hormone नीचे की तरफ जाता है। ओके और डोपामिन हार्मोन के बारे में खास बात ये भी होती है कि डोपामिन हार्मोन और करने को कहता है। अगर आप कोई भी चीज 3, 4, 5 दिन तक लगातार कर लेते हैं तो आप डोपामिन हार्मोन है जो वो कहता है हमें और करना है, और करना है, और करना है। सो डोपामिन हार्मोन is a hormone which gets satisfied by doing small thing, and it is a very powerful way to give a signal to cortisol hormone of saying you can go back to adrenal glands, हमें आपकी जरूरत नहीं है, हमें cortisol की जरूरत नहीं है, stress hormone की जरूरत नहीं है। So that's dopamine hormone. Let's look at, I will talk about serotonin hormone at the end because that's the most important happy hormone that governs a lot of things. Second hormone that I want to talk about is oxytocin as relationship hormone. So oxytocin is a, जब भी हम किसी भी अपने जो लोग हमें अच्छे लगते हैं, जिन लोगों से हमको मिलना अच्छा लगता है, ऐसे लोगों से मिलते हैं या बातचीत करते हैं या ह्यूमन इंटरेक्शन करते हैं तो हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन ऊपर की तरफ जाता है। सो वन ऑफ द वेज, आप लोग अभी तो खैर लॉकडाउन खुल गया है तो हम सब एक दूसरे से मिल रहे हैं, जा रहे हैं, पर लोगों से मिलके, लोगों को स्माइल करके और लोगों को कोई कॉम्प्लीमेंट देने से हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन ऊपर की तरफ जा सकता है। इंस्टेड ऑफ मीटिंग पीपल एंड सेइंग तुम्हारा ये ठीक नहीं है, तुम्हारा वो ठीक नहीं है, या उनसे ये सुनने से कि व्हाट इज नॉट गुड अबाउट अस, हमारा कॉर्टिसोल अप जाता है। तो हमारे प्रोग्राम में हम ऑक्सीटोसिन अप करने के लिए दिन में 4 बार मिलते हैं, हम लोग उसको हडल्स बोलते हैं। तो जब लोग एक दूसरे के सामने आते हैं, एक दूसरे को स्माइल करते हैं, एक दूसरे को नाम से पुकारते हैं, एक दूसरे को एक्नॉलेज करते हैं, एक दूसरे की प्रेजेंस को, तो हमको पता नहीं चलता पर हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन ऊपर की तरफ जाता है। सिमिलरली जब हम अपने ग्रुप्स में अपनी अटेंडेंस मार्क कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि आज हमने ठीक से खाया या नहीं खा पाए,
और आपका कोच या मेंटर आपको एक्नॉलेज करता है, या आपका फेलो ग्रुप मेंबर एक्नॉलेज करता है, या आप कोई अच्छी डिश बनाते हो, उसकी फोटो खींचते हो, भेजते हो, और कोई आपको अप्रिशिएट करता है, तो इस पूरे प्रोसेस में जाने अनजाने में हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन ऊपर की तरफ जा रहा होता है. एंड वी हैव वन पॉलिसी इन आवर प्रोग्राम, इन कॉन्करिंग माय ओन एवरेस्ट प्रोग्राम, इज एक्सेंचुएटिंग द पॉजिटिव. मतलब जो अच्छा है उसको आगे की तरफ बढ़ाओ, और जो अच्छा नहीं है उसको रहने दो, क्योंकि वो जो अच्छे को आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो जो कम अच्छा है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ ऑटोमेटिकली जाएगा. सो दिस इज अनदर वे ऑफ कीपिंग आवर हैप्पी हॉर्मोन्स अप, एंड विच इज ऑक्सीटोसिन. जैसे आपने देखा होगा, बहुत देर तक अकेले बैठे हो, अगर आप में से कोई भी ऐसा करता है कि आप सारा दिन अकेले बैठे हो, घर पे कोई नहीं है, आप परेशान हो रहे हो, द सिंपल थिंग दैट यू हैव टू डू, वेयर योर शूज. द मोमेंट यू विल वेयर योर शूज and you will step out of the house, even if there is nobody to talk to, if you go to garden, speak to children, meet some people, hug children, or play with pets, any one of these activities can level up your oxytocin hormone. That's a way to up your oxytocin hormone, and you don't worry about the cortisol. जैसे oxytocin hormone ऊपर की तरफ जाएगा, आपका cortisol hormone अपने आप नीचे की तरफ आ जाएगा. So anything, आप दिन भर में जिस भी मोमेंट पे ऐसा महसूस करते हैं कि आपको ह्यूमन टच नहीं मिल रहा है, या अनदर लिविंग बीइंग का टच नहीं मिल रहा है, तो उसको पाने के लिए आप कोई भी एफर्ट लगाना वर्थ इट होता है. अपने हेड में रहने से, सेम थॉट को बार बार चलाते रहने से हमारा कॉर्टिसोल हार्मोन अप जा सकता है. पर अगर आप उस थॉट को छोड़ के किसी भी तरीके से ह्यूमन बीइंग के साथ टच स्टैब्लिश करेंगे, और ऐसे ह्यूमन बीइंग्स के साथ जो पॉजिटिव हैं, सो अपने प्रोग्राम में आप अपने कोचेस को कॉल कर सकते हैं, फेलो ह्यूमन बीइंग्स को कॉल कर सकते हैं, मुझको मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं. किसी भी तरीके से अगर आप कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं तो हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन ऊपर की तरफ जाता है. थर्ड हार्मोन एंडोर्फिन के बारे में बात करते हैं. मेरा फेवरेट हार्मोन है, और शायद जितने भी हमारे प्रोग्राम के लोग यहाँ प्रेजेंट हैं उन्होंने भी नहीं रियलाइज किया होगा कि एंडोर्फिन हार्मोन हमारे प्रोग्राम में कैसे अप होता है. सो एंडोर्फिन इज एन एडवेंचर हार्मोन. जब भी हम कोई ऐसी चीज करते हैं जो हमको विश्वास नहीं है कि हम कर सकते हैं, तो हमारा एंडोर्फिन ऊपर की तरफ जाता है. तो मैं आपको रिसेंटली हमने अपने प्रोग्राम पे कुछ किया और मैं वो मैं शेयर करना चाहती हूँ. तो आप में से अधिकतर लोगों को शुगर छोड़ना बहुत मुश्किल काम लगता है, राइट? कि पूरी शुगर कैसे छोड़ सकते हैं, मतलब इट्स नॉट पॉसिबल. और ऐसा लगता है कि अगर शुगर छोड़ देंगे तो जिंदगी से मिठास चली जाएगी, एंड विच इज नॉट ट्रू. तो अपने प्रोग्राम पे हम लोग लोगों को वन स्टेप एट अ टाइम, धीरे धीरे करके, नॉट लाइक एकदम से, धीरे धीरे करके लोग शुगर छोड़ने की तरफ काम करते हैं, कि शुगर को मिनिमाइज करने की तरफ और छोड़ने की तरफ. कुछ लोग थोड़ा लंबा समय लेते हैं, कुछ लोग जल्दी कर लेते हैं, बट दैट्स फाइन. नाउ ये एडवेंचर है किसी किसी की जिंदगी में, कि इसके बिना रहने के बारे में नहीं सोच सकते थे, पर हम उसके अब धीरे धीरे करके उसको छोड़ पा रहे हैं. नाउ दैट विल गिव, दैट इज इवन द थॉट ऑफ इट, कि किसी दिन हम बिना शुगर के रह पाएंगे, एंडोर्फिन हार्मोन को अप करता है. मेरी खुद की लाइफ में मैं इतना मीठा खाने वाली व्यक्ति थी, अगर घर में गाजर का हलवा बन गया, जिसका कि अब सीजन आने वाला है, तो जब तक वो खत्म नहीं हो जाए तब तक मैं फ्रिज खोल के एक चम्मच इधर उधर से खाती रहती थी. इट वॉज लाइक रेगुलर विद मी. और अभी मैं सारा सारा दिन नहीं खाती, मतलब फॉरगेट अबाउट गाजर का हलवा, तो मतलब बहुत दूर की बात है. मैं ऐसे कोई वो भी चीजें बहुत कम खाती हूँ जो ग्लूकोज में कन्वर्ट होती हैं. तो और ये सारा चेंज धीरे धीरे करके आए. पर जब मैंने पहली बार सोचा था, मेरे कोच से मिली थी और मैंने ऐसा सोचा था ऐसा पॉसिबल है, ये सोचकर ही मेरा एंडोर्फिन अप हुआ था कि अरे ये एक एक्शन लेने से अगर मेरी लाइफ ठीक हो सकती है तो अमेजिंग है, ऐसा तो मैं करना चाहती हूँ. आई रिमेम्बर भावना बुआ आपका हाथ खड़ा है, तो मैं आपका एग्जाम्पल देने वाली हूँ. जब भावना दी प्रोग्राम पे आ रही थी तो वो बोलती थी, स्तुति मैं तो रोज बिस्किट खाती हूँ, मैं तो नहीं रह सकती बिस्किट के बिना, तुम मैंने सुना है सब छुड़वा दोगी. मैंने बोला मैं कुछ नहीं छुड़वाऊंगी, धीरे धीरे करके अपने आप आपकी बॉडी रिजेक्ट करना शुरू कर देती. सलोनी दी इज आल्सो स्माइलिंग, आई विल गिव हर एग्जांपल आल्सो, दो शी इज वेरी न्यू इन द प्रोग्राम. कहती है स्तुति तुम्हारी सारी बातें अच्छी हैं, मुझे भी ये डायबिटीज ठीक करनी है, पर मैं तो 2 टोस्ट रोज खाती हूँ ना, उसके बिना तो मुझे जिंदगी में नहीं लगती कि पॉसिबल है. मैंने बोला कोई बात नहीं, आप 2 टोस्ट खाते रहना, पर और भी तो इतनी सारे ग्लूकोज है हमारी बॉडी में जो हम डाल रहे हैं, वहां उन्हें छोड़ सकते देना, जो बहुत प्यारी चीज है उसे मत छोड़ना. सो वन ऑफ द, तो ये जब उन्होंने सुना होगा तो उनको नहीं रियलाइज हुआ होगा, पर उनका एंडोर्फिन हार्मोन अप हुआ होगा. प्रोग्राम के पहले दिन उन्होंने बोला स्तुति आज मैंने 2 टोस्ट नहीं खाए, 1.5 टोस्ट खाया. नाउ you don't realize, but there's a small changes happening. With every small change your happy hormones are going up, you're feeling good about yourself, isn't it? That you are making some changes, you're doing something for yourself, your dopamine is going up, you're doing something that you never thought you will do. Your
endorphin hormone is going up, and then you are sharing it with your coaches or with your community, and they are appreciating you, and in the process your endorphin hormone, oxytocin hormone is going up. So can you see कि आप कोई भी जर्नी को जब लेना भर शुरू करते हो तो कैसे आपके डिफरेंट हॉर्मोन्स धीरे धीरे लेवल अप होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आप एक गेम में होते हो. पता है लोगों को खेलने का शौक क्यों होता है, क्यों कहते हैं कि खेलना बहुत अच्छा है? ऑफ कोर्स बहुत सारी मसल्स की एक्सरसाइजेस होती हैं, हमें एनर्जी मिलती है. उसके अलावा कोई भी स्पोर्ट्स खेलने से आपका डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन एंड सेरोटोनिन सारे हॉर्मोन्स अप होते हैं. तो आप ये गेम सिर्फ फिजिकल गेम्स नहीं होते जिनसे हमारे ये हॉर्मोन्स अप होते हैं, ये कोई भी गेम हो सकता है. मतलब अगर हम अपनी हेल्थ एंड वेलनेस का गेम बनाए कि चलो छोटा छोटा करके चेंजेस लाना शुरू करते हैं और हेल्थ एंड वेलनेस के गेम में पार्टिसिपेट करना शुरू करो, तो भी आपके हॉर्मोन्स अप होते हैं. जी बहुत सारे लोग प्रोग्राम में ऐसा सोचते हैं कि प्रोग्राम में पार्टिसिपेट मत करो, सिर्फ नॉलेज ले लो. हमारे आसपास कोई कर रहा है उसको देखकर हमारा काम चल जाएगा. पर what people don't realize it, then you are not a player, then you are standing on the sides. आपका जब मन है तब आप करोगे, जब मन है तब नहीं करोगे. तो आपने अपने आप को प्लेयर होने का प्रिविलेज ही नहीं दिया, क्योंकि जब आप प्लेयर बन जाओगे तब आपकी लाइफ का गेम चालू होगा, तब आपका एक स्कोर बोर्ड बनेगा, तब आप उस तरफ जाना चालू करोगे. तो आपके ये तीनों हॉर्मोन्स डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन धीरे धीरे करके ऊपर जाएंगे. एंडोर्फिन पे एक और, तो मैं अपने लोगों को प्रोग्राम में कहती हूँ कि सबसे अच्छी चीज जो पता है क्या है, जो हमारी बॉडी के पास है, जो सबसे अच्छा हीलिंग एजेंट है हमारी बॉडी में, जो जिसको हम बोलते हैं कस्तूरी जो है ना हमारी बॉडी के अंदर है, और वो फास्टिंग है. अगर हम फास्टिंग सीखे ना तो हमारी बॉडी कोई भी डिजीज ठीक कर सकती है. और मैं वो इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात नहीं कर रही हूँ जिसमें आप जोर जबरदस्ती करके अपनी बॉडी से इंटरमिटेंट फास्टिंग कराते हो और फिर कम खाते हो. मैं उसकी बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, मैं थोड़ी लॉन्ग फास्टिंग्स की बात कर रही हूँ जो आप समझदारी से करते हो, अच्छे से करते हो. तभी मैंने एक 15 लोगों का बैच इनिशिएट किया जिनको फास्टिंग सिखाई. तो उसमें कुछ लोग ऐसे थे, आई डोंट नो वेदर सरबजीत इज हियर और नॉट, पर वो ऐसे थे ओके मैंने जिंदगी में स्तुति कभी फास्टिंग नहीं करी है, मैं सोच भी नहीं सकती, मेरे पेरेंट्स ने कभी फास्टिंग नहीं करी, मेरे को फास्टिंग के नाम से ही डर लगता है. And she just completed her 36 hours or 38 hours of green fasting, okay, which is different from, don't imagine, okay. So she completed her this fasting and she was like amazed. She's like कि मैं इतना अच्छे से इतने प्यार से बहुत सालों बाद सोई हूँ. या इतने सारे लोगों ने ऐसे रिपोर्ट किया कि इतनी पीसफुल नींद आती है जब हम लॉन्ग फास्टिंग करते हैं, और सुबह सुपर एनर्जी होती है और पूरा मेटाबॉलिज्म अमेजिंग एक्सपीरियंस कर रहा होता है. तो मैं फास्टिंग यूजुअली लोगों को 3 months का प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद सिखाती हूँ. पर अनबिलीवेबल होता है राइट, जो उन्होंने कभी नहीं सोचा. हम करवा चौथ का व्रत करते हैं तो हम रात को सोचते हैं कब चांद निकलेगा, कब हम खाएंगे, कभी सर में दर्द हो रहा होता है, अनईजी हो रहा होता है, खाने की महक हमारे नाक में चढ़ रही होती है, और फिर जब हम खाते हैं तो हम बहुत ही अनईजी महसूस करते हैं, क्योंकि हमें लगता है हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था, अभी हमने हैवी खाना खा लिया तो हम अनईजी होते हैं. सो कुल मिला के एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता थ्रू आउट द डे भी, और रात को भी थोड़ा डिस्कम्फर्ट होता है. पर अगर आप जब सिस्टमैटिकली फास्टिंग सीखते हैं ना लोग प्रोग्राम पे, लोग इतने हैप्पी होते हैं, और ये थॉट इटसेल्फ कि वो ऐसा पॉसिबल कर सकते हैं, अमेजिंग एक्सपीरियंसेस होते हैं. तो दिस इज एंडोर्फिन, लिटिल एडवेंचर एडिंग अप टू पीपल्स लाइफ. और मैं लोगों से बहुत शेयर करती हूँ कि मैं 105 आवर्स की फास्टिंग करती हूँ, वाटर फास्टिंग करती हूँ. तो लोग एस्पायर करते हैं कि हम भी कभी उस जगह पे पहुंचेंगे जहां पे हम इतनी सारी एनर्जी के साथ और बिना कोई साइड इफेक्ट के इतनी फास्टिंग सीख सकते हैं. सो दिस इज एंडोर्फिन हार्मोन गोइंग अप. और इसके लिए फिजिकल गेम खेलने की जरूरत नहीं है, हम अपनी हेल्थ एंड वेलनेस का भी गेम खेल सकते हैं. Okay, let's talk about the last hormone, which is my favorite hormone, which is serotonin hormone. Serotonin hormone का ड्रॉप होना एंजाइटी और डिप्रेशन का सबसे बड़ा कॉज होता है. सेरोटोनिन हार्मोन का अगर मैनेजमेंट हमको आ जाए तो हम बहुत सारे डिप्रेशन रिलेटेड इश्यूज को भी डील कर सकते हैं. तो सेरोटोनिन हार्मोन होता क्या है? सेरोटोनिन हार्मोन को मैं सिंपल शब्दों में सटाइटी हार्मोन बोलती हूँ, जो हमको सेटिस्फेक्शन और सटाइटी देता है, मतलब संतुष्टि देता है. तो ऐसा खाना जिसको खाने के बाद और खाने का मन नहीं करे, खा के एकदम पूरा मन भर जाए, ऐसा लगे वाव, मतलब बॉडी को जो नरिशमेंट चाहिए था वो मिल गया, हम भूखे भी नहीं हैं और अब बहुत देर तक भूख भी नहीं लगने वाली है. अच्छा फूड इसी को कहते हैं कि जिसको खा के तृप्ति आए, अंदर संतुष्टि आए, और इसके बाद तुरंत बहुत जल्दी से भूख ना लगे, उसको ही हम अच्छा नरिशमेंट, अच्छा फूड कह सकते हैं. और उस जो नरिशमेंट जिसकी बात मैं कर रही हूँ, इससे जो हार्मोन लेवल अप होता है हमारी लाइफ में, वो सेरोटोनिन हार्मोन है.
Serotonin hormone is a satiety satisfaction hormone. एंड जो लोग कम खाना प्रैक्टिस करते हैं, कम खाओ, ज्यादा एक्सरसाइजेस करो, उससे वेट लॉस हो जाएगा, इट्स अ रॉन्ग स्ट्रैटेजी, डोंट टेक इट। इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट ज्यादा खराब होने वाले। पर वो स्ट्रैटेजी की अच्छे से खाओ, मन भर के खाओ, सही खाओ, और उसके बाद लॉन्ग टर्म तक उस सटाइटी को महसूस करो। बार बार भूख लगने का जो क्रम है इसको तोड़ो, दिन में 3 बार खाओ, पर एकदम अच्छे से फुल नरिशमेंट के साथ खाओ। दैट्स अ सेरोटोनिन हार्मोन, सटाइटी हार्मोन। another thing that gives this hormone is a deep sleep। अगर आप अच्छे से सो सकते हो uninterrupted, सो प्रोग्राम पे लोग कैसी कैसी चीजें टेक ऑन कर सकते हैं। जैसे पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम, शी सेड, स्तुति बहुत साल हो गए मैं रात को ठीक से नहीं सो पाती, दिन में इतना यूरिनेशन नहीं होता, लेकिन रात को कई बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है, एंड उससे मेरी पूरी नींद डिस्टर्ब होती रहती है। सो शी वाज लाइक, ये एक प्रॉब्लम है जिसको मैं डील करना चाहती हूँ। नाउ शी इज ट्राइंग ऑन वेरियस थिंग्स, by meditation and doing the right food, her sleep is improving bit by bit. Now जितनी नींद improve होगी उतना serotonin hormone improve होगा। There was this person in the program, he said कि वो बहुत स्नोरिंग करते थे और उसकी वजह से उनकी फैमिली डिस्टर्ब रहती थी, उसकी वजह से वो खुद डिस्टर्ब रहते थे। जब उनकी स्नोरिंग ठीक हुई तो उनकी फैमिली ठीक से सो पाती है और वो खुद भी ठीक से सो पाते हैं। नाउ सो पाते हैं तो विच इज ग्रेट, उससे अच्छी फीलिंग आती है, पर वो कौन सा हार्मोन है जो अच्छी फीलिंग देता है? दैट्स अ सेरोटोनिन हार्मोन दैट गिव्स अस सटाइटी फीलिंग। व्हाट एल्स? सिटिंग इन द सनलाइट। मुझे मालूम है आज रॉन्ग डे है सनलाइट के बारे में बात करने के लिए, क्योंकि आई थिंक अक्रॉस द इंडिया सब जगह रेन्स है, क्लाउड्स हैं, बट सन एंड सिटिंग इन द सन। नाउ सिटिंग इन द सन इज आल्सो नॉट लाइक कि आप बैठो धूप में तो आपका ऐसा मन करता है कि सारा दिन बैठे रहो। थोड़ी देर बैठ के सेटिस्फेक्शन आता है, पहले आपके एक कपड़ा उतरता है, फिर एक जैकेट उतरती है, फिर टोपी उतरती है, मफलर उतरता है, फिर आप एकदम सीख जाते हो, फिर आपको लगता है अच्छा अब हो गया, अब अंदर चलते हैं। ये जो ऐसी फीलिंग आती है ना, वो पूरा मिल गया मेरी बॉडी को, that feeling comes from serotonin hormone। and there's another thing that we will be using in our program। ऐसे वॉक से होता है, अगर आप किसी अच्छी जगह पे, ग्रीन जगह पे लंबी सी वॉक करो, तो वॉक करने के बाद आपका मन कहता है अरे बहुत अच्छी वॉक थी, बहुत मजे आए। Now that's like a serotonin hormone। अगर आप मेडिटेशन करते हैं, लॉन्ग मेडिटेशन पे बैठते हैं, उससे जो हार्मोन आपकी बॉडी में निकलता है वो भी सेरोटोनिन हार्मोन है। इट्स अ हार्मोन ऑफ सैटिस्फैक्शन, सटाइटी, लॉन्ग टर्म पीस, हैप्पीनेस। एंड वो उसको समझना है कि किन चीजों से मिलता है। सेरोटोनिन और डोपामिन हार्मोन के बीच में कंफ्यूज नहीं होना है। डोपामिन किसी भी छोटी चीज से अप जा सकता है, फेसबुक पे आपकी फोटो पे 5 लाइक आते हैं तो भी डोपामिन अप जाता है, पर डोपामिन इज अ लिटिल डेंजरस हार्मोन। मतलब हैप्पी हार्मोन है पर डेंजरस है अगर आपने उसे रॉन्ग तरीके से लेना शुरू किया। एक स्मोक अप करने से भी डोपामिन हार्मोन अप जाता है, पर डोपामिन हार्मोन की खास बात यह है कि वो कहता है और चाहिए और चाहिए और चाहिए। मतलब गुलाब जामुन से भी डोपामिन हार्मोन अप जा सकता है, पर वो कहता है और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और वो थ्रेशोल्ड कब क्रॉस हो जाता है पता नहीं चलता। पर उसका ही हमारी बॉडी में एक और सेरोटोनिन हार्मोन है जो ये नहीं कहता और चाहिए और चाहिए और चाहिए, वो कहता है बस हो गया, दैट्स इट। एंड वो लॉन्ग टर्म तक सेटिस्फेक्शन रखता है। दैट्स व्हाई इट इज माय फेवरेट हार्मोन। और हम अपने प्रोग्राम पे अच्छे से खाना, अच्छे से सोना, नेचर के साथ वापस से कनेक्शन करना, कॉन्स्टेंटली कॉर्टिसोल के बारे में अवेयरनेस रखना, अपनी हेल्थ को गेम के जैसे खेलना, अपनी विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करना, पॉजिटिव को एक्सेंचुएट करना, ऐसी ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना, ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें करते हैं जिनसे हमारा सेरोटोनिन हार्मोन अप जाता है। एंड अगर आपको आपका सेरोटोनिन हार्मोन लगातार अप करना आ जाए तो हम बहुत सारी डिजीजेस को विन ओवर कर सकते हैं। बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं जो कॉर्टिसोल हार्मोन की वजह से होती हैं, और अगर सेरोटोनिन हार्मोन को मैनेज करें तो कॉर्टिसोल हार्मोन अपने आप वापस जाता है, रिमिशन में जाता है, और फिर आप सेरोटोनिन की वजह से जो गुड हेल्थ है उसको एंजॉय कर सकते हो। आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेल यू, किसी ने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि वो अपनी इम्यूनिटी पे वर्क करना चाहते हैं। आई डू वॉन्ट टू टेल यू विदाउट एनी नेगेटिव, बट जो ये इम्यूनिटी है, ये च्यवनप्राश खा के या जो कोई और चीजें जो दुनिया में बताते हैं वो खा के आपका इम्यूनिटी अच्छी नहीं होने वाली। इम्यूनिटी बहुत सारी छोटी छोटी चीजों से मिलकर बनी है, और इम्यूनिटी तभी फ्लरिश होती है जब कॉर्टिसोल हार्मोन कम होता है और हैप्पी हार्मोन्स ऊपर होते हैं। इन द फील्ड ऑफ हैप्पी हार्मोन्स द इम्यूनिटी डेवलप्स, and we got to learn
to level up our happy hormones by looking after ourselves. And इन चारों हार्मोन का हम बहुत ही अच्छे से ध्यान रखते हैं जब कॉन्करिंग माय ओन एवरेस्ट के पार्टिसिपेंट्स के लिए, अपने लिए. एंड वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस दैट आई लाइक इज एक्सेंचुएटिंग द पॉजिटिव. जो अच्छा है उसे आगे की तरफ बढ़ाओ, वहां पे अटेंशन रखो, एंड धीरे धीरे करके बाकी जो चीजें हम छोड़ना चाहते हैं वो अपने आप छूट जाएंगी, आपको एफर्ट्स नहीं लगाना पड़ेगा. So this is what I wanted to tell you about today's program. And thank you, Bhavna Bhua. I received your acknowledgement. एंड अगर आप में से कोई भी लाइफस्टाइल डिजीजेस से डील कर रहा है, मेरी पहली रिक्वेस्ट तो ये कि प्लीज पोस्टपोन नहीं करो. आपके बच्चे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन सब ध्यान रख लेंगे. आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपका खुद का ध्यान रखना. और अगर आप किसी लाइफस्टाइल डिजीजेस से डील कर रहे हो तो अब मेरी टीम लिंक भेज रही है, ग्रुप्स पे भी लिंक्स भेजती है. सेट अप एन अपॉइंटमेंट विद मी. आई डू वांट टू हियर व्हाट इज द लाइफस्टाइल डिजीजेस यू आर डीलिंग विद. आपको शायद आपके माइंड में ऐसा लगता होगा ये चीज ठीक नहीं हो सकती. मैं आपको, अगर वो ठीक हो सकती है, कैसे ठीक होती है, कितना समय लगता है, कितने समय में, और हमारा प्रोग्राम आपको कैसे मदद कर सकता है, ये बताना चाहती हूँ मैं. और अगर कोई डिजीज ठीक नहीं हो सकती लेकिन वो कंट्रोल में रह सकती है तो भी मैं आपको बताना चाहती हूँ. सो डोंट जस्ट सिट एंड बिलीव कि अब कभी ठीक नहीं हो सकता. मोटा होना, थायराइड की प्रॉब्लम से डील करते रहना, एसिडिटी की प्रॉब्लम से डील करते रहना, पेट दर्द, पैर दर्द, सर दर्द, कम सोना, don't sit with these problems. हम अपनी लाइफ में पहली प्रायोरिटी है. प्लीज लुक आफ्टर योरसेल्फ एंड यू कैन सेट अप एन अपॉइंटमेंट विथ मी और माय टीम एंड वी आर मोर देन विलिंग टू हेल्प यू. एंड थैंक यू सो मच. आज हमने एक छोटा सा गेम खेला था पास इट ऑन का, कि एक व्यक्ति को एटलीस्ट गिफ्ट ऑफ नॉलेज देते हैं, गिफ्ट ऑफ हीलिंग वन सेल्फ देते हैं. आई एम श्योर आपने बहुत सारे लोगों को इन्वाइट किया अपनी लाइफ से. थैंक यू सो मच. If you like what we do, you can keep sending these webinar links to various groups, to your best friends, to people who may need us. And thank you so much. And team has posted the link. You can take that link and set up a request for an appointment, and we will meet you. We would want to meet you. We would want to support you. Thank you. Bye-bye. Until next Wednesday or till the meeting. We can meet in the meetings as well. Bye-bye.